आप लोगों ने जो कोलकाता विज़िट किया है, आप कहाँ से आए हैं और किस पर्पस के लिए आए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों तक बताएं। हम लोग दिल्ली से आए हैं, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर जामिया मिलिया इस्लामिया। और हमारे इंस्टीट्यूट का एक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑल 5 years, they must be aware about the climatic conditions and architecture and urban situations of the country. अच्छा, ओके तो जनरली पीपल्स का ये बेंट ऑफ माइंड होता है कि जो बाहर हो रहा है, जो आर्किटेक्चर या अर्बन डिज़ाइन बाहर प्रैक्टिस हो रहा है, दैट इज़ समहाउ बेस्ट। बट हमारा ये मानना है कि इंडिया एग्जिस्ट इन डाइवर्सिटी, और इंडिया के अंदर ही अपने आप में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डिफरेंट कल्चरल कंडीशंस हैं, डिफरेंट सोशल कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हर तरीके के आर्किटेक्चरल कंडीशंस और अर्बन डिज़ाइन सिचुएशंस हमको मिलती हैं। तो चूँकि हमको 4th ईयर का जो हमारा डिज़ाइन करिकुलम होता है उसके अंदर अर्बन डिज़ाइन की एक्सरसाइज होती है, और उनको नॉर्थ ईस्ट एरिया के, नॉर्थ ईस्ट रीजन के सिटीज़ को स्टडी करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी हैव चोजन कोलकाता एज आवर सिटी ऑफ फॉर स्टडी। कोलकाता में सर बहुत सारे जगह हैं, कौन कौन सा जगह पर आप लोगों ने विज़िट किया? In general, we visited many places in Kolkata, but for the study purpose, we decided that Lal Bazar area, जहाँ पर the stretch between Howrah and Sealdah. So students are divided in groups of stretch about 250 meters for each group, and they are studying the existing situations, urban conditions, like what are the facade conditions, facade vocabulary, and what are the urban issues right now. They are interviewing the users as well as the stakeholders of that area, and by interviewing or surveying them, they are trying to identify the issues so that they can address their issues in their design interventions. कोलकाता में जो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है उस पर किस तरह से काम करेंगे और क्या क्या काम होंगे? See, Kolkata in itself is a very rich heritage, with a very, very rich heritage. Like we are also asking students to learn from this heritage, whether it's colonial or the traditional architecture of Kolkata. So, in my opinion, we try to understand the traditional as well as the colonial concerns and the architecture which is evolved by the time from its living situations. जैसे कोलकाता के बहुत सारे आर्किटेक्चर जो बहुत पहले के बने हुए हैं और उसकी एक अपनी खूबसूरती भी है। exactly. तो अगर आप उसको चेंज करेंगे तो क्या उसकी खूबसूरती पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज? Exactly, we are not supposed to change the previous one. But what we need to understand कि we are not supposed to follow and repeat all the previous architectural practices, but rather what we can do is to understand the present situations. Like एक present situation ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी overcrowding हुई है, so we need to address those issues in present situation, and from architectural point of view we have to identify we can take the references from the past architecture, but not to copy them. For now we can evolve something new which must be addressing the needs of present peoples and present practices. सर इस फील्ड के बारे में कोलकाता पर उतना क्रेज़ नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं। ज़्यादातर कोलकाता पे किसी और फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर इस फील्ड में जाते हैं, लेकिन इस फील्ड पे बहुत कम स्टूडेंट्स जाते हैं। तो इस फील्ड के बारे में आई डोंट नो व्हाई इज दैट सो, बट इन माय ओपिनियन वी आर रेगुलरली विजिटिंग कोलकाता. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कोलकाता डू हैव इट्स वेरी रिच हेरिटेज, एंड वी डू हैव मैनी थिंग्स to learn from Kolkata, whether we talk about the colonial architecture or modern architecture or traditional one. अच्छा, इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स आए हैं लगभग 70 स्टूडेंट्स आपके साथ आए हैं, तो उन लोगों का आगे जा कर के क्या फ्यूचर होगा, क्या करें, किस कंपनी पे वो ज्वाइन करेंगे, ये सारा रिसर्च करने के बाद? like architecture is a discipline which is very diagnostic in nature, like you can say the medical discipline. Okay, so they do have very bright future in their life. They can join the private sector, corporate sector, or they can establish their own firm. They can start their own business also. So they do have all the options, whether government sector, private sector, or their
especially from architectural perspective. थैंक यू। हम लोग एजुकेशनल ट्रिप के लिए आए हैं कोलकाता। हम लोग अर्बन डिज़ाइन की स्टडी करना है, बेसिकली हमारी एक एक्सरसाइज है, और उसके अलावा हम लोग और भी जगह विजिट करेंगे। हमारी अर्बन डिज़ाइन एक्सरसाइज है, हमें सियालदह रेलवे स्टेशन से लेके हावड़ा रेलवे स्टेशन के बीच का हमारा स्ट्रेच है, और वो हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और हर ग्रुप हर अलग अलग स्ट्रेच की स्टडी करेगा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है, वहाँ पे बेसिकली स्ट्रीट डिज़ाइन ओके। कि मतलब हम लोग जो स्ट्रीट है उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, कुछ काम आप लोगों ने किया, वो क्या आप कैमरे पे दिखा सकती हो जो काम आप लोगों ने? जैसे हम लोगों ने अभी ये कैमरे पे दिखाएंगे प्लीज। हाँ हाँ ये गूगल अर्थ की इमेज है, हाँ ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा स्ट्रेच था, ओके ठीक है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है ये फायर डिपार्टमेंट बिल्डिंग है, ओके यहाँ से हमारा स्ट्रेच शुरू हुआ था और हमारा स्ट्रेच था यहाँ तक। यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर्स, और ये वाली बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हाँ। ठीक है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये अबैंडन्ड है, ओके। और ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अबैंडन्ड है, जो पहले कमर्शियल बिल्डिंग्स थी, पर लॉकडाउन के बाद मतलब ये इनका कोई यूज़ ही नहीं है। इस पूरी बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, ओके। और यहाँ पे एक गली है जो बहुत ज़्यादा शेडी जगह है, बहुत शेडी जगह है, यहाँ पे कोई नहीं जा सकता, लड़की तो बिल्कुल नहीं जा सकती, बिल्कुल सेफ़ फील नहीं हो सकता यहाँ पे। उसके अलावा सर जो स्ट्रीट्स हैं उसमें कहीं पर भी डस्टबिन नहीं है। जब से हम लोग कोलकाता आए वी आर प्लेइंग अ गेम स्पॉट द डस्टबिन। ओके, मतलब और क्या क्या चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व की होंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, तो कुछ बताएं उसके बारे में। सर हम लोग मतलब जो वेंडर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर जोन, मतलब फुटपाथ का जो एरिया है, स्ट्रीट लैम्प्स जो हैं, ये फुटपाथ का एरिया है, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प्स बीच में है, स्ट्रीट लैम्प्स बीच में नहीं होने चाहिए, ओके। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। उसके बाद सर डस्टबिन्स नहीं हैं। उसके बाद वेंडर्स जो हैं पीपल डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद वेंडर्स ऑन द फुटपाथ, बट इट्स अ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू अस। अच्छा, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर वो डस्टबिन वगैरह का भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसा कि आपने कहा, पर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे रैक पिकर्स रहते हैं, लेकिन मतलब लोग फेंकना नहीं चाहते। लोग फेंकते हैं लगभग, मतलब उनसे पूछो, अगर मैंने वेंडर से पूछा आपके पास डस्टबिन है, नहीं यहीं पर फेंक दो। ओके। और कुछ बताइए कोलकाता के बारे में, कि मतलब ये जो कोलकाता यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ओल्ड रस्टिक। उसके बाद यहाँ पर जो बिल्डिंग्स थी, जो यूज़ करना है बिल्डिंग, उसको रेड, येलो या ब्लू पेंट कर दो एंड देन यूज़ इट। ओके, दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड ऑन माई स्ट्रेच। कोलकाता के जो आर्किटेक्चर हैं उनको आप आउट ऑफ 10 कितना देना चाहेंगे? Victoria Memorial is very good, so I'll give 10 on 10 to Okay. Victoria Memorial. Okay. And for the streets of it, it's very European, and it can be molded into a very good street, a very pedestrianized street, and it's also one way, vehicular entry is restricted, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है for pedestrian movement। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट आप लोगों का चल रहा है वो मतलब कौन से डिपार्टमेंट से, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, और हम कौन लोग से यूनिवर्सिटी से आप हैं? ये हम भी लोग बताएं। फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड एक्स्टिक्स जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं, और हमारा अभी हम लोग 4th ईयर बैच से हैं। हमारे 2 बैचेस हैं और दोनों बैचेस आए हैं अभी, एक रेगुलर और एक सेल्फ फाइनेंस। आपका नाम? मेरा नाम अलशफा इकबाल।